हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री में फिजिक्स। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने क्लास 9 मोशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पूछा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या था। A person travels a total distance in 3 parts in the ratio 4:3:1 with a constant speed of 90 km per hour, 20 meter per second, 10 meter per second respectively. What is the average speed of person while the journey? क्वेश्चन कहता है कि एक पर्सन अपने पूरे जर्नी को 3 पार्ट्स में कवर करता है जिस और टोटल डिस्टेंस रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है 4:3:1 और ये 3 पार्ट को वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है और वो कांस्टेंट स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो आइए सॉल्व करते हैं अब हम लोग इस प्रॉब्लम को। तो मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज x. So we will write let the common factor of ratio of distance is equals to x. So the total distance covered by the person will be what? Total distance is equals to what? Total distance. Common factor is x. So total distance will be 4x, 3x and 1x. So total distance will be 4x plus 3x plus x and this is equals to what? 8x. Now total distance is 8x. मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, s is equal to 8x. Now to find the average speed, we know that average speed is equals to total distance by total time. यहाँ हम लोग के पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है, अब हम लोग को टोटल टाइम चाहिए। हर पार्ट का स्पीड दिया हुआ है और हर पार्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। हम लोग 1 बाई 1 3 पार्ट के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे कि पहले पार्ट में कितना टाइम लगा, दूसरे टाइम में कितना टाइम लगा और तीसरे पार्ट में कितना टाइम लगा। ये हम लोग 1 बाई 1 फाइंड आउट करेंगे। सो हम लोग लिख लेते हैं पार्ट 1 इन फर्स्ट part of journey, let the time taken is equals to t1. फर्स्ट पार्ट का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो लेट v1 is equal to 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि अदर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल, 0 is again cancelled from here. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6. So
4 by 100 is equals to V1 is equals to 25 meter per second. Now we have the time for the first time of the first part of the journey is t1 and speed is 25. So we also the distance covered in the first part is 4x. So t1 is equal to distance by speed. So 4x by 25 is time taken in the first part. इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट का भी टाइम निकालेंगे. So in the second part, in second part of journey, let time taken is equals to T2. So T2 is equal to distance covered in the second part. Distance covered in the second part is 3x and the speed of the person in the second part is 20 meter per second. So we will write here 20. In the same way, we will find the time taken in the third part. So in third part of journey, let the time taken is equal to what? T3. Then T3 is equal to distance covered in the third part is x. So x and speed of the person in the third part is 10 meter per second. So we will write here 10. Now we have T1, T2 and T3. अब हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे यहां से. टोटल टाइम is equal to T1 plus T2 plus T3 लेते हैं. टोटल टाइम T है. सो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. T1 is 4x by 25. T2 is 3x by 20 and T3 is x by 10. अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे. Then LCM of 25, 20 and 10 is 100. It will be 4 into 4, 16x plus 5 into 3, 15x plus 10 into x, that is 10x. 16 plus 15 is equal to 31. 31 plus 10 is equals to 41x by 100. Total time is 41x by 100 and total distance is 8x. So we know that average speed is total time by total distance by total time. So total distance is 8x and total time is 41x by 100. x cancel, 100 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा by 41 is equal to 800 by
41। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम व्हाट 19.51 मीटर पर सेकेंड and the average speed is 19.51 meter per second and this is the required answer. So student, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आपका भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर आते ही आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।